excavations. We see a bird's eye view of the great ghat of Har Ki Pauri, beyond which we can see the hills of the Rajaji National Park, the forests that are fabled as the jatas, as the dreadlocks of Lord Shiva, that keep the river ever fresh, ever renewed, so that pilgrims can come and cleanse their sins in these holy waters, in these glacial melts that keep our tradition flowing constantly. As one watches group after group carrying their parasols, their gurus walking under the parasols towards the great ghat of Har Ki Pauri, one is filled with wonder about all these great souls, all those great souls who have come to this holy land, who have come to this holy space and established great centers of learning. Of course, we all know that Akbar, the Mughal emperor, had great faith in the waters of the Ganga. He never drank anything else except the Ganga waters. He bathed in the Ganga waters. Even when he went on military campaigns towards the Deccan, large urns of Ganga water were carried with him for his use. Guru Nanak visited the ghats of the river Ganga several times, and you would be surprised to know that there is a space near the Har Ki Pauri known as the Nanak Bada, where a life-sized image of Guru Nanak is still revered. Guru Amar Das also visited. He is believed to have visited Haridwar 22 times before he ascended to the Gaddi of the Sikh Gurus, and even as the Guru of Sikhism, when he was appointed, visited Haridwar once and worked against the practice of sati. So these waters contain within them huge chapters of history. They contain within them very large inputs of history, and they have been blessed by the arrival of great men, men of great intellect, men of great vision, like Shraddhanandji or Mahatma Munshi Ram, who established the Gurukul Kangri University in Haridwar, Pandit Mahamana Madan Mohan Malviya ji, who established the Rishikul, and of course great saints like Anand Mahima, who have come and practiced penance on the banks of these holy waters, making them so pure. This is what creates the difference between space and place. A place is just like any other part. पतित पावनी मां गंगा के तट पर शुरू हो गया है हरिद्वार महाकुंभ। आस्था और विश्वास के सबसे बड़े मेले में कोविड-19 से हमेशा सतर्क और सावधान रहकर ही हम इसे एक अविस्मरणीय अवसर बना सकते हैं। महाकुंभ हरिद्वार आने वालों के लिए आश्रम, होटल, धर्मशालाओं और रैन बसेरों में सुरक्षित प्रवास हेतु समुचित साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं को रखना चाहती है स्वस्थ और सुरक्षित। आपसे भी है अनुरोध, सैनिटाइजेशन, मास्क का रखकर ध्यान, निभाएं परंपरा और करें महाकुंभ का पावन स्नान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये है प्रयास। निभे सदियों की सनातन परंपरा, संग सुरक्षा और विश्वास।
आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी। यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर, सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित। यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगा स्नान। हरिद्वार में चल रहे कुंभ महापर्व का ये तीसरा शाही स्नान, और इस शाही स्नान में एक के बाद एक अखाड़े ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूरा वैभव है, विराटता है, व्यापकता है और इतिहास को समेटे। जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें आधुनिकता का मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। कहते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसका साथ छोड़ देता है। कुंभ महापर्व का सफल संचालन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी विषय पर कैसे ये सफल संचालन हो रहा है, कुछ देर पहले हमारी सहयोगी शशि शर्मा जी ने बात की मेला अधिकारी दीपक रावत जी से। कुंभ मेला 2021 के 3 शाही स्नान अभी तक बीत चुके हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी हैं। कैसा चल रहा है कुंभ मेला स्नान? ये बहुत अच्छा हमारा तीसरा शाही स्नान चल रहा है, और इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जो सन्यासी अखाड़े हैं उन सभी के स्नान हो चुके हैं। जूना का हो चुका है, निरंजनी का हो चुका है, महानिर्वाणी का हो चुका है। अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बैरागी की 3 अणियाँ हैं उनको पुल नंबर 1 से होते हुए ब्रह्मकुंड में आना है। उनका इंतजार हो रहा है, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। इससे पहले हमारी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, जो गंगा सभा के हमारे स्वयंसेवक हैं, अन्य स्टाफ लगा है, वो भी बड़ी मुस्तैदी से लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। जो हमारी समयबद्धता है, समय सारणी है, अखाड़ों के क्रम का जो स्नान है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, और बाकी अन्य घाटों पे भी श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा तालमेल है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा और सभी आनंद लेंगे। आज का जो शाही स्नान है इसका सब लोग आनंद लेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। सर, अभी तक लगभग कितने लोग स्नान कर चुके होंगे? मेरे पास सुबह जो फिगर आई है वो 8 बजे मैंने फिगर एक बार पुलिस से ली थी, और वो फिगर उस वक्त मुझे 6 लाख की बताई गई थी। उसके बाद मैंने अपडेट अभी नहीं लिया है, लेकिन थोड़ी देर में दोबारा हम आपको अपडेट करेंगे। पूरी तरह से शांतिपूर्ण है? अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा स्नान चल रहा है और सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। सभी से अनुरोध भी है कि हरिद्वार को आप साफ सुथरा रखें, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग ज़रूर मेंटेन करें, और आने वाले दिनों में भी कुंभ हमारा लगातार अभी नोटिफिकेशन तो ऑन है, तो पूरा हमारी जो SOP है उसका आप पालन करें। RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके ही हरिद्वार में प्रवेश करें। सर, कहा जाता है कि संत जो होते हैं वो चलता फिरता तीर्थ होते हैं, तो आप तो इतने सारे संतों के बीच में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि पूज्य साधु संतों का सबका आशीर्वाद लगातार हमको मिल रहा है, और एक अलग ही अनुभूति है। मैं समझता हूँ कि कुंभ का हिस्सा होना और इस तरह के आयोजन का हिस्सा होना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, जिसको मैं ऐसे शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा, केवल महसूस कर सकता है जो इसका हिस्सा है। सर, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सुरक्षा तो करें, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। इसलिए जो हमारी SOP भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है उसका पूरा पालन किया जाए,
और किसी भी प्रकार से किसी दूसरे को आपकी वजह से नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अभी एक स्नान और बाकी है जो केवल बैरागी करेंगे, उसका स्नान क्रम क्या होगा और किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी? इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि केवल उसको बैरागी ही करेंगे। अभी हमारा स्नान जो है वो 27 को होगा और उसमें अभी काफ़ी समय है, उसकी हम पूरी तैयारी करेंगे। नरत्वम दुर्लभम लोके, हमारे शास्त्रों ने कहा है, अर्थात मनुष्य जन्म पाना सौभाग्य का विषय है। अनेक संतों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्यमान शत न पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मोक्ष का द्वार है यह शरीर, साधन धाम है यह शरीर। इसलिए मनुष्य शरीर जब हमें मिला है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ यह योनि है, तो इसके साथ साथ हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। आप देख रहे हैं गंगा जी को। गंगा जी 2 तटों के बीच से बह रही हैं। प्रायः सारी नदियाँ 2 तटों के बीच से होकर के ही बहती हैं। ये नदियाँ जब 2 तटों के बीच से होकर बहती हैं तो हमेशा लोक का कल्याण करती हैं, सबका मंगल करती हैं, सबको जीवन प्रदान करती हैं। पर यही नदियाँ अपने तट को तोड़ दें, तट को तोड़ करके नदियाँ बाहर आ जाएं, तट से बाहर बहने लग जाएं, तो फिर जगत का विनाश कर देती हैं। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बिल्कुल आप इस पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि धर्म पहला तट है और मोक्ष अंतिम तट है और बीच में अर्थ और काम रूप नदी बह रही है। यदि धर्म से अनुप्राणित, धर्म से अनुमोदित अर्थ हो, काम हो, तो वो हमेशा सुख देने वाला होता है और सबका लक्ष्य मोक्ष होता है। धर्म और मोक्ष, इन दोनों तटों के बीच से अर्थ और काम रूपी नदी बहती रहेगी, हमेशा कल्याण होता रहेगा। पर धर्म रूप तट टूट जाए या मोक्ष रूप तट टूट जाए तो फिर अर्थ और काम भी विनाशकारी सिद्ध होते हैं। कुंभ मेला में इन पुरुषार्थों के जो मुख्य 2 तट हैं, धर्म और मोक्ष, इन दोनों तटों को मजबूत करने का काम होता है। कुंभ मेला में चर्चा द्वारा, शास्त्र मंथन द्वारा, विचार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुंभ मेला में ही धर्म और मोक्ष दोनों को व्यवस्थित किया जाता है। इनमें आई विकृतियों को दूर किया जाता है जिससे मानव जीवन सफल हो सके। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, अलग अलग धर्म भी हैं। पर धर्म है, अपर धर्म है। अपर धर्म भी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, काल धर्म, युग धर्म, राज धर्म, व्यक्ति धर्म, कुल धर्म, अनेक धर्मों की बात कही गई है। एक सामान्य लक्षण जो अच्छा है वह है कि जिससे सबका अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त हो सबको, वह धर्म है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। इस धर्म की चर्चा में ही एक आपद धर्म भी है। आपत्ति काल में भी व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था दी गई है शास्त्र में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस समय कोरोना काल चल रहा है, आपत्ति काल चल रहा है, आपत्ति काल है। अतः इस समय शरीर रक्षा भी हमारा धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है।
शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, कुमार संभव में कालिदास जी ने कहा है शरीरमाद्यम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन शरीर है। अतः इस शरीर की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें मास्क का भी प्रयोग करना है, सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है और कोरोना को दूर करने के लिए या कोरोना से बचने के लिए जो भी अपेक्षित उपाय हैं इन्हें भी हमें अपनाना है। अभी तीर्थ के बारे में चर्चा हो रही थी। तीर्थ के बारे में आप सब लोग तीर्थ में आए हैं और जो नहीं आए हैं वे दर्शन कर रहे हैं, कभी न कभी वे भी तीर्थ में जाएंगे। तीर्थ क्या है? तो तरंति जनाः यस्मात् पापादिकम तत्तीर्थम, जिससे पापादि को पार कर लिया जाए, पापादि से तारने में, अलग करने में या संसार रूप सागर से पार जाने में जो साधन है वही तीर्थ है। यद्यपि तीर्थ के अनेक अर्थ हैं तीर्थ शब्द के, फिर भी अभी हम लोग जिस तीर्थ की बात कर रहे हैं वो तीर्थ आप देख रहे हैं, हरिद्वार तीर्थ है। हरिद्वार तीर्थ में कई तीर्थ समाहित हैं, 3.5 करोड़ से अधिक तीर्थों का निवास है, चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। तीर्थों का विभाग हमारे यहाँ 3 तरह से किया गया है, शारीर तीर्थ, मानस तीर्थ और भौम तीर्थ। विद्या, तपस्या, कीर्ति, मन की विशुद्धि, वाणी पर नियंत्रण, इंद्रियों का निग्रह, ये सब शारीरिक तीर्थ हैं। इसी प्रकार सत्य, दया, क्षमा, ये सब मानस तीर्थ हैं। और भौम तीर्थ हैं हरिद्वार, काशी, मथुरा इत्यादि। भौम तीर्थ हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, कुंभ का योग आज प्राप्त हुआ है। तीर्थ में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है, पर फल प्राप्त कब होगा इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। गंगा में क्या क्या नहीं करना चाहिए अभी आपने सुना। तीर्थ के लिए भी बताया गया है कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम विद्या तपस्य कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। अर्थात हाथ, पैर, मन ये सब शुद्ध हैं, नियंत्रित हैं। यहाँ आकर के विद्या की ही चर्चा जो करता है, तप करता है, साधना करता है, तीर्थ में आने पर उस तीर्थ का गुणगान करता है, वही उस तीर्थ का फल प्राप्त कर पाता है। अभी देखिए हमारे सामने एक भक्त कैसे भगवान के भजन में लीन है, गंगा माँ के तट पर खड़ा हो करके, पीली पगड़ी पहन करके और करतल बजाते हुए भगवान का स्मरण कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है। तीर्थ में आए तो भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, कभी भी इधर उधर की बातें न करें, किसी की निंदा या अतिशय स्तुति न करें, तभी जाकर तीर्थ का फल प्राप्त हो पाता है। और हमेशा तीर्थ में आए तो अपनी भावना को बिल्कुल विशुद्ध रखें, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता है। कहा गया है गंगा तो ये न कृत्स्नेन मृद भारिश्च न गोपमैहि आमृत्योश्चाचरन् शौचम भाव दुष्टो न शुध्यति। गंगा के सारे जल से भी यदि कोई स्नान कर ले, पहाड़ के बराबर मिट्टी से मलमल कर स्नान कर ले, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत स्नान करता रहे, मल धोता रहे, फिर भी यदि उसकी भावना दूषित है, उसका मन दूषित है, हृदय मलिन है, तो वह तीर्थ फल प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए तीर्थ में कभी भी आए या जाएं तो वहाँ अपने आप को बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निंदा स्तुति से अपने आप को वंचित रखें। जिस तीर्थ में जाएं
उसी तीर्थ का गुणगान करें। और तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ गंगा है, हरिद्वार है। कलयुग में तो इनका विशेष महत्व है। गंगा में सारे तीर्थ स्वतः निवास करते हैं। अभी आपने सुना, कभी भी गंगा में कपड़ा धोना नहीं चाहिए, गंगा में कूला नहीं करना चाहिए, गंगा को दूषित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे गाय है, गाय को हमारे यहाँ माता की संज्ञा दी गई है, गाऊ विश्वस्य मातरम। ठीक उसी प्रकार जल को भी माता की संज्ञा दी गई है, आपो मातरः कहा गया है। जैसे हम गाय से दूध, दही, घी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम गाय का पोषण करते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हर तरह से गाय का हम भरण पोषण करते हैं। हमारे द्वारा गाय जब पुष्ट होती है तो उसके दूध, दही, घी से हम पुष्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार गंगा माँ भी हैं, हमारे द्वारा ये पुष्ट होंगी और उनके द्वारा हम पुष्ट होंगे। हम इनकी सेवा करेंगे, इनको निर्मल बनाने में अपना योगदान देंगे, इनका प्रवाह बना रहे, क्योंकि नदी वेगेन शुद्धति, नदी हमेशा वेग से शुद्ध रहती है। इनका प्रवाह बना रहे, ये प्रदूषित न हो। यदि ये सुरक्षित रहेंगी, ये पुष्ट रहेंगी, ये निर्मल रहेंगी, तो हमें भी निर्मल करेंगी, हमें भी पुष्ट करेंगी, हमें भी नव्य जीवन, दिव्य जीवन, भव्य जीवन प्रदान करेंगी। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि माँ गंगा ही नहीं, जो भी आपके आसपास नदी है, सरोवर है, इन सब की हम सुरक्षा करें, इनको प्रदूषण से मुक्त रखने में अपना अमूल्य योगदान करें। क्योंकि जल है तो जीवन है, फिर गंगा जल तो अमृत है। ऐसा गंगा जल जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं कि हमें भी वह अवसर मिले कि मैं जाकर गंगा में स्नान करूं। भागवत में भी चर्चा आती है, जब भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न कर लिया, गंगा माँ जब आने को तैयार हो गई तो उन्होंने पूछा कि किं चाहम न भुवम यासे नरा मैया मृजंत्यघम मृजामि तदघम कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम। अर्थात मैं भूमि पर जाना नहीं चाहती हूँ राजन, आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं चलूँगी, पर सब लोग हमारे अंदर आकर पाप धोएंगे तो हम अपना पाप कहाँ धोएंगी, हम अपना पाप कैसे उतारेंगे। तो उन्होंने कहा, भगीरथ ने कहा, आश्वासन दिया कि हे माँ, आपके अंदर सन्यासी स्नान करेंगे, संत स्नान करेंगे, साधु स्नान करेंगे, कर्मयोगी लोग स्नान